Hello everyone, welcome to my channel Backbenchers Mathematics. So in this video we will study about the second concept of real numbers. If you have not watched the first concept or the basic of this real number, then see the description below. I have shared the link. There you can see the previous videos. In this video we will discuss the second concept. The first concept was Euclid division lemma and the second concept is fundamental theorem of arithmetic. So we are going to study about what are fundamental theorems of arithmetic. So many times 1 mark में question sometime asked define fundamental theorem of arithmetic. So what is this? Every composite number can be expressed as a product of prime and this factorization is unique apart from the order rate method. This is the bookish definition. अब देखते हैं इसमें क्या क्या वर्ड्स है. Composite number, product of prime, factorization is unique. So basically what are composite numbers? सबसे पहले बात करते हैं prime numbers की. We all know what are prime numbers. Prime numbers are the numbers which have factor only 1 and the number itself. जैसे 3, 5, they all are prime. 3, 2, the first prime number is 2, 3, 5. They are prime जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं या फिर खुद से डिवाइड हो सकते हैं. There is no any other number. While composite numbers are the numbers which are not prime. या फिर वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 10 को अगर मैं फैक्टर्स करूं, 10 कैन बी डिवाइडेड बाय 2, कैन बी डिवाइडेड बाय 5, 1 से भी हो सकता है और 10 खुद से भी हो सकता है. तो द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स दे आर कंपोजिट नंबर्स and the number which have only 2 factors, that is 1 and the number itself, they are prime numbers. According to this definition, कोई भी आप composite number लोगे 10, 15, 30, any composite number, it can be expressed as a product of prime. उनको हम लिख सकते हैं prime numbers का multiple, product prime numbers का. And this factorization is unique. वो जो factorization होगी वो unique भी वो सिर्फ उसी number के लिए होगी. एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. लेट्स से 120 अगर हम फैक्टर्स देखें तो फर्स्ट 2, 60, then again 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. So here I can see 120 is equal to 2 into 2 into 2. So this is what? Composite number. 120 is a composite number. But I have expressed this as 2 into 2 into 2 into 3 into 5. They all are prime number. So composite number, every composite number can be expressed as a product of prime. Can be expressed as a product of prime. They all are prime numbers. This factorization is unique. मतलब ये जो factorization है 2 into 2 into 2 into 3 into 5, ये सिर्फ 120 की ही हो सकती है और किसी भी नंबर की नहीं हो सकती. कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे अगर नंबर चेंज हुआ तो. Apart from the order 8 method. What do you mean by this? Apart from the order 8 method. मतलब हम इसको अगर मैं 3 into 5 into 2 into 2 into 2 लिखूंगा तभी क्या आएगा? 120 है. तो apart from the order, जिस order में हमने इसको लिखा है, इसके अलावा this is not unique. It can be shuffled. 2, 3 को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ. But this factorization, the whole factorization, that is unique. That will only give 120. So this is fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed as a product of prime. The factorization is unique apart from the order rate. Okay. I hope the definition is clear. कई बार 1 mark पे definition पूछ लेते हैं. तो बस याद रखना आपको क्या क्या याद रखना. composite number, prime number और factorization. तो आपको याद रहेगा composite number जो भी होता है उसको हम product of prime लिख सकते हैं और factorization जो होती है वो होती है unique apart from the order. इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? दिस इज सेकंड कॉन्सेप्ट. कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे? सपोज आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है. एलसीएम ऑफ एनी 3 नंबर और 2 नंबर. एलसीएम एंड एचसीएफ दे बोथ कैन बी, वी कैन सॉल्व एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रॉम दिस फैक्टराइजेशन. सपोज 12, 15 and let's say 21. There is a question in your book. Find the LCM and HCF of these 3 numbers. तो सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है. 12 की अगर मैं देखूं 2 into 2 into 3. This is 2 into 2 into 3. 15 on the other side is 3 into 5. 21 is 3 into 7.
तो सर these are the prime factorization of 12, 15, 21. ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। तीनों कंपोजिट नंबर को आई हैव रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इनमें प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। जब आप फैक्टराइजेशन दे रहे हो, देयर शुड बी ओनली प्राइम नंबर्स। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहले 3 तीनों में एलसीएम जब हम लिखेंगे 3 अच्छा 2 into 2, जो तीनों में होता है उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। अगर किसी को ये नहीं पता, whenever we find the LCM, LCM के केस में जो भी नंबर तीनों में कॉमन होता है, that number is written once। अगर यहाँ पर 3 होती है, यहाँ पर दोनों में कॉमन होता है, इसमें नहीं होता सपोज, तो हम 2 बार 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर ये तीनों नंबर में है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। this 2 यहाँ पर आ गया, सारे नंबर्स कवर होने चाहिए। एक 2 यहाँ पर कवर कर लिया हमने, ये 2 यहाँ पर कवर कर लिया हमने, 3 तीनों कवर हो गए, 5 यहाँ पर कवर हो गया, 7 ये भी कवर हो गया। ऑल नंबर्स हैव बीन कवर्ड। This is 12 into 5 into 7, which is further 16 to 7, 420। HCF की अगर हम बात करें, HCF is highest common factor, ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन। क्या है तीनों में कॉमन सर? 3। तो 3 is the HCF of this number। तो कई बार ये क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द LCM एंड HCF of these numbers। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सभी कंपोजिट नंबर को हम पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख लेते हैं, देन वी कैन इजीली फाइंड LCM एंड HCF ऑफ दीस नंबर। नाउ द अदर थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्सेप्ट इज, जिस पे मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम कभी भी दो नंबर्स लें, कोई भी दो कंपोजिट नंबर अगर लें, कोई भी दो कंपोजिट, उनका LCM और HCF का प्रोडक्ट, the product of LCM and HCF of two numbers is always equal to the product of the number। कोई भी दो नंबर अगर आप लोगे, उनके LCM और HCF का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज टू नंबर्स आर, हम A और B से रिप्रेजेंट करते हैं 10, 15। दो नंबर हमने ये 10, 15, इनका अगर मैं एलसीएम निकालूं, तो 2 into 5 is 10 and 15 का होता है 3 into 5। तो एलसीएम कितना आएगा? 5 एक बार, 5 into 2 into 3, 30 is the LCM and HCF is 5। LCM कितना आएगा? 30, HCF 5। LCM यहाँ पर निकाल दीजिए हमने 2 into 5 10 का, 3 into 5 15 का, तो 5 दोनों में कॉमन, एक बार 5 को लिखेंगे, एक बार 2 को, एक बार 3 को। दिस इज LCM which comes out to be 30। तो 30 LCM, HCF 5। लेट्स सी लेफ्ट हैंड साइड में LCM into HCF। व्हाट इज LCM? 30 multiplied by 5 which is equal to 150। प्रोडक्ट ऑफ नंबर देखते हैं, प्रोडक्ट नंबर्स कहते हैं 10 into 15 which is also equal to 150। हेंस वेरीफाइड, आपने वेरीफाई करते हैं कि LCM into HCF हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये लेकिन एप्लीकेबल है सिर्फ दो नंबर के केस में। इफ यू हैव टू नंबर्स, नॉट इन द केस ऑफ 3 नंबर। अगर 3 नंबर, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था 15, 21 एंड देन वन मोर 12, ये 3 नंबर का हमने LCM और HCF निकाला था, लेकिन LCM और HCF का प्रोडक्ट इन 3 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आएगा। दिस इज ओनली एप्लीकेबल, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू हैव 2 नंबर्स। अगर 3 नंबर है तो उसका अलग फॉर्मूला। If you have 3 numbers, then the product of LCM and HCF, there is a separate formula that I would like you to find it out. Although it is mentioned in your NCERT, आपके NCERT में भी mentioned है ये formula of 3 numbers. If you know, just comment. If you don't know, then try to search it out. This is also interesting. Now the next thing जो इसमें आती है, जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले? इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? कई बार आपको गिवन होता है, गिवन आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आपको गिवन है HCF of these two number 306 and 657 is 9। This is given, HCF is given, you have to find the LCM।
नाउ वन मेथड इज आप इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स करोगे, देन यू विल सी द कॉमन एंड देन यू विल एक्सप्रेस देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के बाद एलसीएम निकालना, व्हिच इज वेरी लेंथी। आपको एचसीएफ गिवन है 9, वी नो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम को एज इट इज रख देते हैं। एचसीएफ कितना है 9 इज इक्वल टू 306 into 657. So easily you can see the LCM is equal to 306 into 657 divided by 9. अब इसको डिवाइड कर लो, 9 3 27, then 3 9 4 36, 34 into 657 आप मल्टीप्लाई कर दो, कैरी 2 5 32 6 4 7 21 17 this comes out to be 22338। क्योंकि हमें पता है LCM into HCF is equal to product of two numbers, दो नंबर गिवन है, इनका प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में आ गया, LCM into HCF यहाँ पर लिख दिया आपने, LCM can easily find it out। Now the next thing जो आपकी exercise 2.2 है, your entirely exercise 2.2 is based on this concept only, सिर्फ इस concept अपनी पूरी exercise based है। One more question जो जिसमें students get confused many times, prove या फिर show that 7 into 11 into 13 plus 13 is composite। There are two parts in your exercise, एक ये पार्ट है एक और पार्ट है, जिसमें आपको प्रूव करना है, शो करना है कि ये नंबर कंपोजिट। तो ये कंपोजिट दिखाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट की डेफिनेशन मैंने बताई। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और उस नंबर के अलावा कोई और नंबर जिससे वो डिवाइड हो सके। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 7 into 11 into 13 plus 13, यहाँ पर 13 plus 13 है। Can I take 13 कॉमन? दोनों में से 13 कॉमन ले सकता हूँ, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, 13 दोनों में 13 मैंने कॉमन लिया। 7 into 11 into 1 plus 1, which is 13 into 7 into 11 is 77 plus 1 17। ये जो भी नंबर आएगा हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, we don't need to multiply। जो भी ये नंबर आएगा वो 13 से तो डिवाइड हो ही होगा, 78 से भी डिवाइडेड होगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और जो भी नंबर आएगा उससे भी डिवाइड होगा। So clearly we can see this number has more than 2 factors, so it is composite। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पर दिखाया 13 कॉमन लिया, 7 into 11 into 1 plus 1 which is 13 into 78। so दो नंबर का प्रोडक्ट है, मतलब ये भी उसका फैक्टर है, जो भी नंबर आएगा 13 से डिवाइड हो जाएगा, 78 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और खुद से डिवाइड होगा ही होगा। तो clearly we can, यहाँ पर आप देख सकते हो, clearly we can write, we can see this number has more than 2 factors, so it is a composite number। So this was about the fundamental theorem of arithmetic। The whole exercise 2.2 is based on this। Please go and do that exercise। आपको जिस भी पार्ट में डाउट है please write on the comment box, आप मुझे बता सकते हैं। I'll make another video for this। And there's one more question, 6 raised to the power n never ends with 0। 6 raised to the power n never ends with 0। देखो you need to understand, किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आता है, if any number ends with 0, that number must have 2 and 5 as its factor। 2 and 5 both should be its factor। अगर उस नंबर के फैक्टर्स हैं तभी वो नंबर 0 का एंड करेगा, वरना नहीं करेगा। तो 6 n की अगर मैं बात करूं, this is 2 into 3, there is no 5 in this number, so it can never end with 0। I hope you like the video। अगर अच्छी लगी तो please do like it, otherwise like it। Thank you।